episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना, so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Today we are going to meet Mr. Haseeb Gardezi, COO of Hashoo Group, Hospitality and Education Division. Hello sir, welcome to our show. It's a pleasure that you took time out for us. Thank you very much for inviting me. It's a pleasure to be with you. Thank you. To start off, I would love for you to tell us कि किस तरह आपकी जो professional journey है उसका आगाज़ हुआ. Okay, being Gardezi, I belong to Multan. Okay. So I was actually raised there. I got my education from there. And then my parents always wanted me to become either engineer or a doctor. But मेरा बड़ा भाई is engineer. So जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, I'm talking about 82, 84. Okay. उस 84 में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है उसका मेरिट वाज वेरी हाई और उस वक्त इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, बस एक लाहौर वाली थी. Somehow the other I could not get the merit. So then my mother wanted me to become a CSP officer. All the conventional things. Yes, exactly. So then I was sent to Lahore. मेरे वालिद के बड़े दोस्त थे जो प्रोफेसर थे FC कॉलेज के अंदर. Okay. So he started preparing me for CSP and I used to go to Qaid-e-Azam library in the Lawrence Garden and all that. पढ़ने वाला तो मैं था ही नहीं, अगर होता तो इंजीनियर बन जाता. Anyway, I look at the newspaper, तो न्यूज़पेपर पे लिखा हुआ था कि जी अमेरिकन बेस एक कन्वीनियंट स्टोर है, तो उनको पाकिस्तानी इंग्लिश स्पीकिंग यंग स्मार्ट इंडिविजुअल्स की ज़रूरत है. तो I applied. Okay. So when I applied, so they invited us to PC Lahore for interview. अच्छा. So when we came to here, there were 1200-1400 बल्कि 2000 लड़का था सारा गेट के ऊपर, बट उन्होंने कोई जगह बुक नहीं कराई हुई थी फॉर इंटरव्यूज. अच्छा. वो 2 कमरे उन्होंने बुक कराए हुए थे, तो उसके बाद सिक्योरिटी ने हमें धक्के देने शुरू कर दिए. सो एवरीबडी वांट्स अस के जी नहीं इधर तो उनका कोई अरेंजमेंट नहीं है. तो इवेंचुअली दे सेड कि ठीक है जी, आप अपनी एप्लीकेशंस जो हैं इधर छोड़ दीजिए, हम आपको कॉल करेंगे. सही. So तैयार श्यार हुए हुए थे. So from here I went directly to Avari, which was Hilton. Okay. Yeah. So I started having a club sandwich and a cup of coffee. और कोई काम नहीं था, बट ड्रेस अप वगैरह हुआ था सही. तो वहाँ मैंने देखा लड़के बड़े ज़बरदस्त बर्गंडी जैकेट्स के अंदर और बड़े स्मार्ट. मैंने कहा यार ये भी तो नौकरी कर रहे हैं, जब पता करते हैं कि ये कैसे नौकरी कर रहे हैं. This is how it started. Okay. The same time I went to the reception से मुझे डाइवर्ट किया गया. I still know the guy who is in Australia. His name is Sohail Saleh. Very interesting story. Yeah, and the Sohail Saleh then sent me to the HR department. HR department में गया, वहाँ कर्नल साहब थे. कर्नल साहब ने जब मेरी हाइट शाइट देखी तो वो एक्स आर्मी के थे, तो यकदम उनको अच्छा लगा कि यार एक लंबा ऊंचा आदमी. फिर उन्होंने मेरे से पूछा कहाँ से आए हो, तो मैंने बताया कि जी मैं मुल्तान से आया हूँ. लकीली उन्होंने अपनी बेटी जो है मुल्तान की एक फैमिली में दी हुई थी. तो उनका जो दामाद था, वुड बी दामाद, वो मेरा सीनियर था स्कूल के अंदर. अच्छा. This is how the interaction started. So to cut the story short, I was given a trainee's position that you become a management trainee because you don't have experience. Okay. So the first 3 months took me to give me an awareness that was the field that I was made for. Okay. And from that very day I decided that I will excel, I will do my education in there and so on and so forth. अच्छा, मुझे बताएं कि you've also taken formal education. You said you then took formal education. तो फिर उसके लिए आप कहाँ गए? Okay, then after I started my career, so I started doing courses. I did a course from Institute of Leadership and Management in Lahore. I did courses from LUMS and I went to Cornell, USA for hospitality certificate. अच्छा, so now you are the COO of Hashoo Group. And I'm sure it has been a great journey. लेकिन Hashoo Group के साथ जो association है, how did that begin? और फिर वो journey जो है वो कैसी रही? This is the 3rd time I'm with Hashoo Group. Okay. पहले I was with Avari. So I started my career with Avari and then thereafter I became an assistant manager in PC Lahore. उसके बाद after doing my 2 years there, so I was offered a job here as an assistant front office manager. सही. मैंने साल काम किया था, तो अवारी साहब ने
he opened a hotel in Dubai. Okay. So क्योंकि मैं उनके साथ 2 साल काम करता था, तो वहाँ जो जनरल मैनेजर थे पीटर फोरसाइट, he was अंग्रेज, so उसको मेरा पोटेंशियल भी पता था, वर्किंग स्टाइल भी पता था. तो जब when he became the general manager of Awari, he offered me कि तुम मेरे साथ अवारी चलो, अच्छा, दुबई चलो. सही. So then after working 1 year here, तो उनका प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया. सो देन आई ओपन द हॉलीडे इन लाहौर, जो आजकल शेरेटन 4 पॉइंट है. बिल्कुल. तो वो शेरेटन 4 पॉइंट है जो आजकल वो हॉलीडे इन था. वहाँ मैंने 6 महीने काम किया. तो देन मेरा वीज़ा वगैरह आ गया. तो देन आई वेंट टू अवारी दुबई. सो फ्रॉम अवारी आई वेंट टू दोहा, बहरीन, Muscat, Oman. So I have been traveling all over. Yeah, all over. Achha, when we talk about Hashoo Group, just for the sake of informing our viewers, Hashoo Group की कह लें जो umbrella के under है, कौन-कौन से ventures और कौन-कौन सी hospitality chains आती हैं? जो तो Hashoo Group है उसके अंदर Hashoo Hospitality जो है वो एक division है. Okay. Hashoo Group itself बहुत सारी चीज़ों में है, रियल एस्टेट में है, इंडस्ट्रियल डिवीजन है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल था, ऑयल एंड गैस में भी आर बिग टाइम इन ऑयल एंड गैस. सो हॉस्पिटैलिटी जो है हाशू ग्रुप का वो दैट इज़ वन डिवीजन जिसका मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ. हाशू ग्रुप हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन. और सो उसका दैट्स वेयर आई एम. सो इस वक्त जो हॉस्पिटैलिटी के ब्रांड हैं उनमें PC, Percontinental Hotels and Resort. Then we have got Marriott's, जिसका we are the franchise owners. Then we have got PC Legacy, which is our 4-star brand. Hotel One, which is our 3-star brand, and we have very recently started another one called the Pearl Residences, which is going to be the apartments. Okay. So these are few hotels. Achha, given that you are handling hospitality and with so many ventures, so many chains, कैसे possible करते हैं standardization of service? Like, because ये तो है कि you get that standardized expectation जो होती है services की. How do you guys manage that? कोई भी वेंचर जो है ना वो किसी एक आदमी पे वन मैन शो तो हो ही नहीं सकता. क्रिकेट टीम अगर कहे कि कप्तान की वजह से जीत गई तो इज नॉट पॉसिबल. अच्छी टीम बनाने के लिए अच्छे प्लेयर चुनने पड़ते हैं. इसी तरह हॉस्पिटैलिटी में वी ट्राई, our Hashoo Group tries to get the best talent available. When this best talent becomes available, then it becomes easier for people like me to do their jobs, because then there are people who understand your language, there are people who understand your philosophy. And then vision and the philosophy come from the top, which is Mr. Saduddin Hashwani, chairman, and Mr. Murtaza Hashwani, because they have a vision about hospitality कि पाकिस्तान के अंदर hospitality का standard अच्छा होना चाहिए, food का standard अच्छा होना चाहिए. It becomes very easy when you have got the top leadership who provides you right guidance, and then you have colleagues under you who understands and ready to implement that guidance throughout. So it becomes easy, but it is all team. अगर हम internationally देखें hospitality को, and then we look at our own country, do you think we are up to the mark? Our standards are comparable? बेशक हम same categories में देख लें, 5-star, 3-star, 4-star. What is your take on that? कभी जाएं देखें. मैं इसलिए नहीं कह रहा because we are managing, because you see कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो obsolete हो चुकी हैं. आपको होटलों में 24 आवर रूम सर्विस अब नहीं मिलती. आप बैग लेके जाते हैं, आपको कोई आपसे नहीं पूछता कि यार तेरा बैग उठा के हम कमरे तक छोड़ें. कोई बेल बॉय नहीं. आप गाड़ी लेके जाएं, कोई वैलेट ड्राइवर नहीं होता जो आपको. कोई पार्किंग ऐसी नहीं है जब आप जाएं तो आपको फ्री पार्किंग नहीं. जो लोग दुनिया में फिरते हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है. हाँ, ये अलबत्ता बात सही है कि जब हमारे पास रहते हैं हमसे थोड़ी सी गलती हो जाए तो ये ज़रूर कहते हैं कि यार तुसी रहे पाकिस्तान. मतलब वो हमें क्रेडिट नहीं देते. ये इसी तरह ही है जैसे हम अपने मुल्क को क्रेडिट नहीं देते. हम समझते हैं कि हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है, यकीन करें कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिरता रहता हूँ. आई थिंक वी नीड टू गिव क्रेडिट टू आवरसेल्फ. हमारी हॉस्पिटैलिटी जो है अभी भी जहाँ पे स्टैंडर्ड वाइज वी आर द बेस्ट. हमारी जो इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी की, क्या चैलेंजेस हैं जो वो अभी तक फेस कर रहे हैं? ओके निस्बा, जो हमारे क्योंकि इंडस्ट्री जैसे आपने खुद पहले कहा, हमने डिस्कस किया कि बड़े स्लो प्रोसेस से आई है. अब आके आपको कोई एक आधा होटल नज़र आता है नया. पहले तो आप 2-3 ही होटल्स थे. और स्पेशली जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में गुफ्तगू शुरू हुई है. और कोविड ने एक और अच्छा पॉजिटिव जो काम किया वो ये किया कि लोगों को कहा कि अपने मुल्क की जाके सैर. जो इस वक्त चैलेंज है उसमें एक चैलेंज तो है मैन पावर का, कि हमें वो प्रोफेशनल मैन पावर जो है अवेलेबल नहीं होती.
क्योंकि लोग खुद को इस फील्ड में इन्वेस्ट नहीं करते। इसीलिए ये जब हमने ये वाला इशू देखा तो हाशू स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हमने स्टार्ट किया इस्लामाबाद में, जिसमें कि इंशाल्लाह फ्यूचर की लीडरशिप हॉस्पिटैलिटी की वो हम रेडी करेंगे, नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर एनीबॉडी हु वांट्स। हाँ बिल्कुल। एक तो ये है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। मसला आप जहाँ पे भी जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ KPK में हो गया या गिलगित बल्तिस्तान में हो गया, जब आप होटल बनाते हैं ना, जैसे निस्बा अगर आप जाके रहेंगी, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इस इलाके में पानी आता है या नहीं आता। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि इस इलाके में बिजली आती है, मुझे वो अमेनिटीज़ चाहिए, आपको गर्म पानी चाहिए, आपको साफ़ पानी चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको फूड वो चाहिए जो जिससे आपकी तबीयत ख़राब ना हो, पेट ख़राब ना हो। ये चैलेंजेस हैं। इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी तक गवर्नमेंट उस फास्ट पेस पे नहीं बना सकी जिस तरह लोगों ने उन इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया। दूसरी बात है कि थोड़ी सी चैलेंज हमारी आवाम की तरफ से भी है। हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि ये जितने खूबसूरत इलाके हैं, यहाँ जिधर कम लोग जाते थे, अब वहाँ देखेंगे प्लास्टिक बैग्स हो गए, बच्चों के यूज्ड पैम्पर्स हो गए, लिटर हो गया। They all keep on doing that. That's a bigger challenge for the government also. What do you think the government can do, let's say in the next 5 years, कोई ऐसे measures जो आपको लगता है कि instantly they should take, to further elevate the industry now that tourism is booming internally as well? I was the chairman Pakistan Hotel Association September-October तक। अभी नए चेयरमैन आ गए, हर 1 साल के लिए इलेक्ट होता है। सही। हमने पूरा एक वाइट पेपर बना के गवर्नमेंट को दिया। पूरी दुनिया में टूरिज्म जो है ना, वो हुकूमत डेवलप करती है। देखें, आप चाहें, मैं चाहूँ, जाके हम बूरबन के पहाड़ों को डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पे पानी के टैंक्स और बिजली के मंसूबे नहीं लगा सकते। बिल्कुल, ये हुकूमत का काम है ये करना। जितने भी रिजॉर्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी कंपनी, वहाँ पे आपको इनकरेज करना पड़ेगा। अगर आप उन्हें कहेंगे ना बिलियन ऑफ रुपीज़ की पहले ज़मीन ख़रीदो फिर इसके बनाए, वो गवर्नमेंट की जो लैंड होल्डिंग है जहाँ पे बड़ी बड़ी खूबसूरत जगह पे, गवर्नमेंट शुड गिव इट ऑन लीजेस सो दैट पीपल कैन इन्वेस्ट ऑन देम एंड कैन develop infrastructure. So government should also develop the campsite for people who cannot afford. सारी दुनिया होटल afford कर सकती। So I think there are quite a number of things that the government has to do, and there are quite a number of things that the private sector has to do. Also, I feel as a consumer of this industry, lately I think we were traveling, we were going to Nathia Gali or something like that, or we were just discussing कि जो रास्ता है ना, उसमें भी कुछ developments होनी चाहिए. There should be like pit stops where you can stop and you have activities like when you're traveling internationally. तो अगर आप road trip भी ले रहे हो तो there are various things you can do and visit and stuff like that. तो I think अगर वो भी हो, that would make it even more interesting and worthwhile. अभी तो आप दुनिया में होटलों में जाओ तो उन्होंने सेल्फी की एक बूथ बनाया हुआ। आई थिंक गवर्नमेंट ने भी, वो आपकी बात सही है, रास्ते में ना वो सेल्फी बूथ टाइप जगह जहाँ पे दैट शुड बी द मोस्ट सीनिक, दूरबीन लगी हो, वहाँ पे आप बैनाकुलर्स लगे हो, आप खड़े होके उनसे अब नज़ारा देखें। आई थिंक गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू, बहुत सारा कुछ है जो इतना यकदम नहीं होगा, बट स्लोली बट विल मौजूद है। अब आपको ये फील होता है कि देयर इज अ विल, देयर इज डिस्कशन इज गोइंग ऑन अबाउट दैट। So as you were mentioning that you have been the chairman of Pakistan Hotel Association, as an association, do you think it has been able to bring some impact to the situation? मैं आपको बताऊंगा कि when it was COVID situation and the hospitality and other business were going down, this association has literally worked with the government to induce them. देखें, बहुत सारे टाइम पे एम्प्लॉयज़ को रिटेन करवाया, गवर्नमेंट के पास गए, बैंकों ने लोन्स दिए कि यार आप अभी सैलरीज दे दें, बाद में हमें कम इंटरेस्ट पे लोन दे दीजिएगा। सो देयर वर मेनी थिंग्स दैट वी डिड। जब कोविड की वो एक पीक चल रही थी, जब ना वैक्सीनेशंस थी, जो कह लें पहली दूसरी वेव थी, आई थिंक इट वाज द वर्स्ट फॉर द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वो वाला टाइम। तो हाशू ग्रुप जो है स्पेसिफिकली, आप लोगों ने किस तरह से हैंडल किया उस सिचुएशन को? HR इश्यूज जो हैं, एग्जैक्टली रिटेनिंग और लेटिंग गो पीपल, हाउ वर यू एबल टू मैनेज द होल सिचुएशन? सारे होटल ऑलमोस्ट बंद कर दिए गवर्नमेंट ने, वो और कुछ कर ही नहीं सकते थे, राइट?
लोग जो है ऑब्वियसली जो है वो घरों में बैठ गए, वहाँ से काम शुरू हो गया। सो हैंस हमारे पास दो किस्म के प्रॉब्लम हुए। एक तो ये हुआ कि हमारे अपने एम्प्लॉयज़ थे, बिल्कुल, उनको तो हमने रिटेन किया, लेकिन एक एम्प्लॉयज़ थे जो ठेकेदार के एम्प्लॉयज़ थे, उनके लिए बड़ी परेशानी हो गई कि उनके लोग रिटेन नहीं कर पाए। तो उन्होंने लोगों को ले ऑफ किया, तो उसके लिए एक थोड़ा सा उस वक्त डिफ़िकल्टी क्रिएट हुई। उसके बाद हमारी सीनियर मैनेजमेंट जो थी, ओनर से लेके कॉर्पोरेट ऑफिसर, वी ऑल एग्रीड कि यार वी विल वर्क ऑन अ वेरी वेरी मिनिमम सैलरी एंड लेट दी लोअर पेड पीपल शुड कंटिन्यू टू गेट दिस। तो हमने थ्रेशोल्ड लगाए कि इस थ्रेशोल्ड तक लोगों को फुल सैलरी देनी है, इस थ्रेशोल्ड पे ये करना। सो वी केम अप एंड डिड लॉट ऑफ थिंग्स जिससे कि वी वर एबल टू सस्टेन। द अदर थिंग इज प्रॉपर्टी लाइक दिस आप अकेला भी नहीं छोड़ सकते, इंजीनियरिंग की भी ज़रूरत है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है। फिर हमने वो काम करने शुरू कर दिए, जैसे कि गेस्ट ठहरे होते हैं तो कमरे में जाके उनकी पानी बंद करके टूटी नहीं ठीक कर सकते, ये नहीं करते, तो वो जो इस तरह के रेनोवेशन स्टफ जो थी वो करना शुरू किया। उसके बाद NCOC जो है गवर्नमेंट की बॉडी ने भी बहुत हेल्प किया हमें एडवाइस करने में कि क्या करना है क्या नहीं करना। एंड वी आल्सो सॉ द अनप्रेसिडेंट लॉयल्टी बाय द एम्प्लॉयज सेइंग इट्स ओके, हम रहेंगे, हम काम करेंगे, डज नॉट मैटर। इंशाल्लाह कंपनी जो है ना इससे वो एयरलाइंस और होटल्स वर द वर्स्ट हिट, बट आई थिंक वी अगेन वर ब्लेस्ड with the people who are very loyal to the company. They said कि नहीं, we will, ये टाइम है, कंपनी ने हमेशा हमारा ख्याल रखा है, ये टाइम है कि हमने कंपनी का ख्याल रखना है। So together we pulled it out. That's very impressive. Very impressive. COVID has become a part of our lives. I think we've all accepted it in that aspect. तो आप लोगों ने as in कोई इस तरह के sustainable measures, SOPs, अब वो क्या स्ट्रैटेजी है जिसके तहत आप लोग चल रहे हैं एंड कह लें द मिल इज़ रनिंग? पहली बात तो ये है कि हमारा, मैं शायद वो कहते हैं ना, वो भी कहते हैं 99% कीटाणु, तो मैं अभी 99% इसलिए कह रहा हूँ कि 100% जो है शायद कोई एक 99% we have vaccinated staff. Great. 99%. Great. How we got them? We went to चीफ मिनिस्टर एंड प्लेसेस एंड रिक्वेस्टेड देम कि इधर ही कैंप लगा दो। सही हो गया। सो इधर कैंप लग गया। जब कैंप लगा स्टाफ के लिए तो हमने कहा नहीं, नॉट ओनली द स्टाफ, योर फैमिलीज हैव टू गेट ऑल्सो। तो उन्होंने कहा नहीं जी मेरी तो बीवी नहीं मानती, तो मैं वो बच्चे, हमने कहा नो, एवरीबडी वुड हैव टू गेट वैक्सीनेटेड बिकॉज तुम यहाँ से फारिग होगे फिर घर जाओगे, फिर आओगे। फिर हमने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई कि इट इज़ नॉट फॉर यू, इट इज़ फॉर द गेस्ट, यू इंटरेक्ट विद 100 पीपल एवरी डे। आपको शायद ना हो लेकिन आप कैरी कर सकते हैं। फिर हमने सारी फैमिलीज का यहाँ कैंप लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह 99% ऑफ आवर एसोसिएट्स आर वैक्सीनेटेड। एक दौर ऐसा भी आया जब हमने कहा नो वैक्सीनेशन नो जॉब, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये तकरीबन इसका पता नहीं मैं ये बात कहूँ एयर पे जाके लोग वो ना करें, इट हैज़ बिकम अनदर फ्लू हमारी ज़िंदगी में। जैसे फ्लू, अच्छा ये बात हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि अब वो इस स्टेज पे आ गया है कि फ्लू भी तो हम एक दूसरे से कैच कर लेते करते हैं ना। वो कहता है कि यार इसको खांसी है, इसके करीब ना जाना, बिकॉज यू नो लाइक द पीपल हु हैड कोविड, द फर्स्ट स्ट्रेन जब ना वैक्सीन थी ना कुछ थी, तो तब 17-15 डेज टेम्परेचर रहता था। अब जब लोगों को हुआ है तो it's been 5-6 days and people were getting negative. So वो it's become a part of our life now. It's a part of life. It will be part of the travel life. It will be part of everything. But it has made traveling very difficult. Yeah, but it has also. Let's be honest. It has also become an economic gain for a lot of people. They would not like this to go away overnight क्योंकि उनकी laboratories और everybody is earning from there also. इंसान हमेशा challenging times भी face करता है. Not every time things are going how you want them to be. तो जब आपके सामने कोई ऐसा फेज आए which is very challenging या not as expected, तो what is your instinct? How do you power through it and how do you like keep yourself going through that? 3 idiots, it will pass. You remember that? This will also pass. This will also pass. मैं अभी तुम्हें सिर्फ 3 हफ्ते पहले की बात सुनाता हूँ। जी। I was going to Dubai. मेरा दुबई में एक बिजनेस ट्रैवल था। मेरा बड़ा भाई दुबई हो। मेरी भाभी ने मुझे कहा कि हसीब भाई पाकिस्तान में हंटर बीफ अच्छा बनता है, तो वो लेते आइएगा। सो आई वेंट एंड आई पिक्ड अप थोड़ा सा हंटर बीफ और मैंने अपने हाउस बॉय को कहा कि इसको फ्रिज में रख दो, मेक श्योर सुबह जब मैं जा रहा हूँ तो ये मुझे दे दो। खैर मेरा हाउस बॉय मेरा ड्राइवर भी है। ओके। सो अब हम एयरपोर्ट के नज़दीक थे
तो मैंने उससे पूछा कि तुमने हंटर बीफ तो रख दिया होगा, तो उसने कहा ओह बॉस मैं भूल गया। Oh no. So I was upset. I'm sure. How could you do that? हम एयरपोर्ट पहुंच गए तो उन्होंने मेरा स्वाप लिया तो उसके बाद उसने मुझे कहा एयरपोर्ट वाले ने, सर आप गाड़ी में बैठ रहे हैं, मुझे पासपोर्ट दे दें, मैं आपका बोर्डिंग पास करूँ। एंड आई फॉरगॉट पासपोर्ट। Oh God! I had forgotten passport. God has created a correction there and then. It is a human error. It can be a houseboy, it could be CEO of the company. Forgetting thing is a human error. Allah मैंने उसी वक्त correction किया. And I had to end. मेरा reaction और मेरे houseboy के reaction में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, जिसमें कि मुझे शर्मिंदगी होना शुरू। उसने पता मुझे क्या, आप क्यों परेशान हो? मैं हूँ ना, मैं गाड़ी भगा के लेके जाऊँगा, मैं आपका भी पासपोर्ट लेके आता हूँ, आपके जहाज जाने से पहले यकीन करें आपका पासपोर्ट आपके पास। Look at the two reactions of the same situation. The guy forgets something which was not even his duty, by the way. मुझे भी याद रखना चाहिए। And I said, कैसे हो सकता है कि तुम्हें मैंने बताया था कल। And when I forgot my passport, his reaction was so accommodating. Such a learning curve. Such a learning curve that, you know, there's a human element. It has nothing to do with he being a houseboy and I being a CEO. One can forget. Anyway, फिर I got the passport. I got the hunter beef also. फिर passport के साथ hunter beef भी आ गया. So then everything. But you know, that's how you learn from life. That things are. Human beings are human beings. There would always be a human challenge everywhere, irrespective where you are, when you are. So, yeah. Ajay, given that you have so much going on with so many chains and so many ventures, एक professional दिन आपका कैसे गुजरता है? कैसे माइक्रो मैनेज करते हैं? आई एम श्योर यू डेलीगेट स्टफ ऑब्वियसली टू योर टीम, टू योर एम्प्लॉइज, बट फिर भी, और उसके अलावा व्हाट डू यू थिंक इज़ योर लीडरशिप स्टाइल? मेरे ख्याल में लीडर वही है जिसके कोई फॉलोअर्स हों। मतलब मैं बड़ा लकी हूँगा अगर 4 लोगों से आप पूछेंगे कि यार कल को अगर आप हसीब की जगह आते हैं, क्या आप हसीब बनना पसंद करेंगे? अगर तो वो कहते हैं कि हाँ वी वुड लाइक टू बी लाइक हिम, देन इट्स अ सक्सेस। कभी ऐसा लगा है कि I have achieved so much and I'm so doing so many things, or maybe that thought sometimes goes to your head, और फिर उसके बाद कभी ज़रूरत पड़ी अपने आप को grounded रखने के लिए, तो क्या करते हैं फिर? क्या सोचते हैं उस टाइम? The only thing that keeps you down is that you need to pray about it. क्योंकि देखें there are lot of people around you who actually willingly or unwillingly try to push you up. आपको पता होता है कि आप घर से निकल रहे होते हैं तो बीवी कहती है ये क्या आज आपने शर्ट और टाई पहन ली, तो मैच ही नहीं कर रही, तो आप कहते हैं मैं तो जल्दी में हूँ। आप आते हैं तो नीचे दुनिया कहती है कि सर क्या बात है, आप कमाल है। एक तो अल्लाह मियाँ ये गाइडेंस दे कि आपको ये फील हो जाए कि कौन सी बात सच है। अच्छा, एज वी वर डिस्कसिंग टूरिज्म अर्लियर एज वेल, क्या पोटेंशियल आप मज़ीद देखते हैं? आपको लगता है कि कुछ ऐसे बहुत से जोन्स और एरियाज़ हैं जो कम्प्लीटली अनएक्सप्लोर्ड हैं और उनको फोरफ्रंट पे आना चाहिए? फॉर एग्जांपल देयर आर सम बीचेस ऑन वे टू गवादर एंड स्टफ लाइक दैट। तो क्या पोटेंशियल देखते हैं पाकिस्तानी टूरिज्म को लेके? देखें पाकिस्तान टूरिज्म का जो पोटेंशियल है ना, वो तो टैप ही नहीं हुआ अभी। किसी को पता ही नहीं है पाकिस्तान का। इट्स अ वेरी वेल केप्ट सीक्रेट फ्रॉम द वर्ल्ड। इट इज़ अ वेरी वेल केप्ट सीक्रेट फ्रॉम अस आल्सो। हमने सारी उम्र किताबों में पढ़ा कायदे आज़म का आखिरी आरामगाह ज़ियारत थी। आप गई हैं? नहीं। मैं गया हूँ। क्या हमने एफर्ट की कि हमारे बच्चे जाएं? बिल्कुल। क्या किसी ने एफर्ट की कि यार वहाँ के टूर होने चाहिए, लोग जाएं और देखें? बिल्कुल। हमने अपने आप को शाये रखा हमेशा सिचुएशन। सही। मेरा कश्मीर जो है जी, आज़ाद कश्मीर जिसमें मुजफ्फराबाद है, अगर आप उधर जाएं, बाग हो गया और बहुत सारी जगह हैं, इतनी खूबसूरत हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। क्या कहते हैं, पीर चनासी हो गया। हमें हमेशा से ये बताया गया कि पाकिस्तान का जो कश्मीर है वो इंतहाई बेकार है, अच्छा कश्मीर तो इंडिया के पास रह गया। हमने कभी इस चीज़ की कोशिश ही ना की कि जाके देखें कि कश्मीर है क्या। आई थिंक देयर आर प्लेसेस, जैसे अभी आपने कहा उर्मारा हो गया और दूसरी गवादर पे जाती दफ़ा बीचेस हैं, इतनी खूबसूरत लैंडस्केप है। अच्छा, एज a group that is one of the कह लें main players in our hospitality industry, तो उस लिहाज से आपको क्या लगता है कि आप लोगों की over the time क्या contribution रही है in the tourism industry?
देखें, मैं अपनी तो शायद बात ना करूं इसमें, क्योंकि मैं तो आई एम एन एम्प्लॉय हु हैज़ बीन गिविंग सर्विस, बट मैं इसके ऊपर हशवानी साहब का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, जिन्होंने ऑन गोइंग बग़ैर किसी और जज्बे के सिवाय पेट्रियाटिज़म के उन्होंने वहाँ होटल बनाए हैं जहाँ कोई आज भी होटल नहीं बना। गवादर में हमने होटल बनाया, क्यों बनाया? इसलिए बनाया, एक तो हशवानी साहब की मदर उस इलाके से हैं, गवादर से। So he had a very strong bond and relation with there. उस होटल का नाम है ज़ेवर पलकोनेंटल, तो ज़ेवर उनकी मदर का नाम। अच्छा, ठीक है, सही। So हशवानी साहब बलोच हैं उस इलाके से। ओके। एक तो वो मोटिवेशन तो थी, सही। उसके बाद जब उस वक़्त की गवर्नमेंट ने उनको कहा कि जनाब हम यहाँ पे इंटरनेशनल पोर्ट बनाना चाहते हैं और सब बॉक्सेस टिक होते हैं लेकिन यहाँ होटल नहीं, उन्होंने बगैर सोचे समझे कि यार यहाँ होटल की क्या सिचुएशन, उन्होंने गए एंड ही बिल्ट अ होटल कि यार मुल्क को अगर मेरी ज़रूरत है तो आई शुड बिल्ड। मुजफ्फराबाद देख लें, आज़ाद कश्मीर, एवरीबडी थॉट कि इंडिया हमारे हमसाय मुल्क और हमारे दरमियान रिलेशन ठीक हो जाएंगे, गेट्स खुल जाएंगे तो वहाँ पे भी लोग आएंगे। वहाँ होटल नहीं था, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ होटल बनाए, उन्होंने होटल बना दिया। जब हम हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, लाइक व्हेन यू परसूड इट एज अ करियर, आपको क्या लगता है कि एज एजुकेशन के बेसिस पे, करिकुलम, डिग्रीज, क्या काम मज़ीद होना चाहिए है कि ये जो एक प्रोफेशन है ये खुलकर मेन स्ट्रीम प्रोफेशन बन जाए और लोग इसकी फॉर्मल एजुकेशन लें? क्योंकि आई थिंक अभी भी हम लैक कर रहे हैं उस लिहाज से। वी डोंट हैव प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस, जिसकी वजह से लोग अभी भी एक रिजर्वेशन होती है, बिकॉज इट्स नॉट, यू नो, देयर इज़ नो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन। तो एक तो हाशू ग्रुप इज़ ऑब्वियसली हैज़ इनिशिएटेड अ यूनिवर्सिटी, अ स्कूल, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल दैट, और क्या इनिशिएटिव्स होने चाहिए? देखिए, हमने एक और चीज़ जो अभी आपने देखा पाकिस्तान में माशाल्लाह यंग पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप हो रहे हैं, दूसरी चीज़ों। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि एक इन्वेस्टर ही रेस्टोरेंट बनाए और फिर एम्प्लॉय करे लोगों को। जो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन है, जो हॉस्पिटैलिटी की, टूरिज़म की, टूर एंड ट्रेड की, वो आपको इनकरेज करती है अपना बिजनेस करने के लिए, वो आपको इनकरेज करती है, आपका दिमाग खोलती है, आपको बिजनेस सेंस देती है कि हाउ टू डेवलप द बिजनेस, और फिर वो आपको इनकरेज करती है कि आप अपना छोटा सा काम स्टार्ट करें। देखें, जब तक लोग खुद एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे, जब तक अपने अपने छोटे छोटे बिजनेस नहीं करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी। सो मेरे ख्याल में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़म और ट्रैवल एंड टूर में जो पढ़ाएं, उसमें वो लोग जिनको अल्लाह ने मेरा मतलब है इतना दिया है, तो बच्चों को पढ़ाएं ताकि एक पढ़ा लिखा एंटरप्रेन्योर पैदा हो, एक पढ़ा लिखा इन्वेस्टर पैदा हो जो जाके बिजनेसेस को ग्रो करे। और बिजनेस की ग्रोथ के साथ ही पाकिस्तान की ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। Hiring procedures is obviously a more HR related aspect, but still I would want your take on it कि when you are looking at a young professional, what are those 2-3 things जो आपको बहुत would, you know, grasp your attention and you'd be like, this person needs to be hired? Anything that impresses you या is necessary in this field? हॉस्पिटैलिटी जो है ना जी, ये फील्ड जो है इसका DNA होना आपका बड़ा ज़रूरी है। यू नीड टू हैव दैट पैशन। अगर आप रेस्टोरेंट में हैं तो आपको अच्छे खाने का पता हो कि यार अच्छा खाना कैसे टेस्ट करता है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी पैशनेट फील्ड, इसीलिए आप देखेंगे। और फिर पर्सनैलिटी, you need somebody to greet, pleasant personality with good smile, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा। देखें, जो होटल्स के अंदर लोगों का पेशेंस का बहुत इम्तिहान होता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम ऑल ओवर। शायद आपकी गलती नहीं होती, गलती अगर एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा तो मेरे ख्याल में इंजीनियरिंग का इशू है, लेकिन वो जो रिसेप्शन पे बच्चा खड़ा है या बच्ची खड़ी है, उसको लेना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए पेशेंस का होना और आपका शॉक एब्जॉर्बर का होना और पंचिंग बैग होना, ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी चाहिए इसके लिए, दैट डू नॉट रिएक्ट बैक द वे द कस्टमर समटाइम रिएक्ट्स एट यू, एंड इट नीड्स पीपल हु आर एक्सट्रोवर्ट, इट इज नॉट फॉर इंट्रोवर्ट, दोज पीपल हु लाइक टू टॉक टू पीपल एंड वांट टू इंटरैक्ट। हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में हम ऑलरेडी देखते हैं कि बहुत सी खवातीन जो हैं वो एम्प्लॉयड होती हैं और दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द field, but still what is your take of women being part of the workforce? देखें, कई जो है ना प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें वीमेन जो है ना, दे आर द नेचुरल सक्सेसर्स। एयर क्रू को देख लें, यू वुड फील, क्योंकि उनको होस्ट, एक खातून होस्ट होती है, उसको पता होता है ये टेबल कैसे रखना है।
एंड शी हैज़ अल्लाह मियाँ ने वो उसको सिनफ नफीस दी होती है जिससे वो चीज़ों को उस तरह देख सकती है जिस तरह इंसान एक मर्द नहीं देख सकता। उसके बाद हॉस्पिटल्स हो गए जहाँ ख़वातीन बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। होटल इंडस्ट्री इज़ अनदर फील्ड जिसमें के फीमेल आर द नेचुरल सक्सेसर। हाउएवर हॉस्पिटैलिटी के अंदर थोड़ा सा इशू जो है पाकिस्तान के अंदर गेटिंग योरसेल्फ एक्सपोज टू पब्लिक है। आप लॉबी में खड़े हैं तो आपका कोई रिश्तेदार आ सकता है एंड दे कैन बी ओपिनियनेटेड, पाकिस्तान जजमेंटल एंड ओपिनियन। वो एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें मैंने देखा है बहुत सारी अच्छी बच्चियां जो आगे बढ़ना चाहती हैं वो सिर्फ सोशल प्रेशर की वजह से कि यार मैं यार उधर खड़ी होंगी तो मेरा कज़न भी आ सकता है, मामू आ सकते हैं, वो खाना और फिर देन दे विल बी हैविंग अ जजमेंट अबाउट इट एंड थिंग्स लाइक दैट। हमारे यहाँ इस वक्त हमारी जो जेंडर डाइवर्सिफिकेशन है वो 11 से 12% है। ओके। बट मिस्टर मुर्तज़ा हशवानी जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है बाय 2025 द डाइवर्सिफिकेशन हैज़ टू बी मिनिमम 25%। ओके। तो हमने किया है कि हमने कई ऐसे रोल्स हैं होटल्स के अंदर कॉर्पोरेट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में जिनको एलिजिबिलिटी फीमेल के अलावा आप रख ही नहीं सकते। होता है ना कि हसीब गर्देजी ने कह दिया जी मैं तो बड़ा ढूंढा तो मुझे तो खातून मिल ही नहीं रही, मुझे तो आप ऐसा करें कि XYZ बड़ा अच्छा है वो। उन्होंने वी हैव लॉक्ड दोज पोजीशंस ओनली फॉर फीमेल। फीमेल होगी तो आपको ये वैकेंसी आप फिल कर सकते हैं वरना वैकेंसी फिल नहीं कर सकते। उसकी वजह से ये हुआ है कि वो जो अब हमने देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स सिंस दिस पॉलिसी हैज़ कम अप जेंडर डाइवर्सिफिकेशन हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव्ड। हमारी कोशिश है कि जो हमारा PC लेगेसी जो खुल रहा है हुंजा के अंदर मे बी इट्स ऑल फीमेल होटल। However, there are certain times जब के फीमेल का नहीं और certain trades engineering हो गए। So when I say all female hotel से मुराद जहाँ मैक्सिमम हम फीमेल एसोसिएट्स को कर सकते हैं इंट्रोड्यूस, we will try to do। अच्छा, what is your take on corporate social responsibility and how do you guys as a big organization make sure of that? We have a total separate wing called the Hashoo Foundation. उनका काम यही है। Their job is to do the social responsibility. उसकी जो head है Madam Aisha Khan, she is the Chief Sustainability Officer for our group. Very recently, we have also signed for net zero emissions for Pakistan. We have committed ourselves. Pakistan has gone on an international forum and committed net zero emissions by 2050. Okay. और उसमें 18 या 20 corporate companies हैं जिन्होंने खुद को pledge किया है to work towards it, and we are one of them. Great. So including the solar energy, including many other things, waste management, carbon emission reduction, इस सारे के ऊपर हम काम करेंगे। We have developed a whole department who will do that. The good thing about is that they don't want to advertise it. So our owners want to do it subtly in a way कि help होती जाए, but they should not be exposed. We are not supposed to talk about these things. आपने सवाल किया, but we do lots. अच्छा, at your position right now or otherwise as well, कोई ऐसा professional decision जो आपको लेना बहुत difficult लगता हो? आज भी it is very difficult to fire people. It's very difficult. Despite you know that you're doing it right. Despite you know कि ये XYZ deserve this. Despite you know that you have exhausted all your options before doing it. It's very painful. It's still very painful, but we still exercise it because it is good for the health of the company. When you go to a doctor and he says कि यार आपका हाथ बाकी की 5 उंगलियां 4 बच सकती हैं अगर एक उंगली जो है वो किया जाए, you take that decision. That's very painful decision. Definitely. Still, I think by large, the most difficult decision is taking away somebody's livelihood from him. True. The day you tell them sorry, you don't have the job. That's true. Yeah, so that's the most difficult, even today. Okay, what does the future hold for you guys? Like, what's coming in future? I think the future is about Pakistan. Pakistan is progressing. We feel we see a very progressive Pakistan. In coming days, we see there is a lot of challenges. People are talking about the challenges,
but we see the positive side. We see, while we are in the hotels, don't forget, we also see how many people are coming in and what they are doing. For example, when people stay, all of a sudden, a couple of German guys are in this hotel. You go and ask them, how are you? And they tell you, we are here to expand XYZ business and we are here to look at the energy sector. So, मेरा अपना ज़ाती तौर पे मेरा ये बिलीफ है कि इस मुल्क ने हर एक को बहुत दिया है और हर आदमी ने इस मुल्क को छोड़ना ही चाहा कि मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँ और अपनी एक्सपर्टीज़ और अपना अच्छा टैलेंट दूसरे मुल्कों को दूँ. वो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से, मेरे ख़्याल में वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में रह सकते हैं, जिनको अल्लाह का फजल है, उनको टैलेंट अपना और अपनी एफर्ट्स इस मुल्क को देनी चाहिए ताकि दिस country should become even a better place for their own generations. Acha, who has been your inspiration? Now, the inspiration again, there has been religious inspiration. It's up to you, however you want to answer. So the religious inspiration has been the Prophet Muhammad and Imam Ali. On the other side, my mother has been a great inspiration for me. And I think on the professional side, I do hold Mr. Saduddin Hashwani and Murtaza Hashwani very high. In what they are doing for Pakistan in hospital, because I'm exposed to that, so I can talk about it. Maybe there are people around who are doing others in different fields, but these are the fields that the situation. Okay, so enough of these very technical, very professional questions. Moving on to our last leg of lighter questions, just to know a bit more about you. So. सबसे पहले बताएं कि हैप्पीनेस आपके लिए क्या है? Happiness is when you make others happy. I think happiness while eating a good pizza is a happiness. But if you see somebody who needs that pizza more than you and you give it to him, and the smile and the happiness that comes is more happy. अल्लाह करे कि अल्लाह इतनी तौफीक दे कि आप गिविंग हैंड रहें और गिविंग हैंड के साथ जो हैप्पीनेस है उसका कोई नहीं मुल बदल नहीं. जब आप खुद खा रहे होते हैं और उसके बाद आपका छोटा बेटा आपको कहता है, अब्बा बाबा कैन आई टेक द पार्ट ऑफ योर फूड, एंड यू से यस, एंड दैट्स एन हैप्पीनेस. आई थिंक हैप्पीनेस लाइज इन गिविंग एंड नॉट टेकिंग. अल्लाह मियाँ तौफीक दिए रखे और देने वाला हाथ भी दे और तौफीक भी दे. अच्छा, गुस्सा जो है वो गुस्से के तेज़ हैं, आता है नहीं आता है, and how do you manage it if it? गुस्सा तो जी आता है because it's a natural feeling. बिल्कुल. Right, but then again with lot of experience and maturity, you also understand that it's a timely phase, it has to go back. So मेरे ख्याल में एक certain time पे आके आपको इतनी maturity आ जाती है that you want to take a pause before you react. अच्छा, stress को कैसे वो करते हैं? For example, बहुत stressful हुई हैं चीज़ें and you want to break it off. तो कोई ऐसी activity, कोई भी ऐसी habit जो आप करते हो to relieve stress? देखें जी, मैं golf खेलता हूँ. I try to play 3-4 दफ़ा दिन में, sometime early morning, sometime evening. I think golf is something, sports. Golf को छोड़ देते हैं. Sports is something which actually keeps you calm and keeps you. For example, अगर आपको गुस्सा है और आपकी anxiety है, तो there are rackets and balls, and then you have got the clubs and bats and balls to hit them in a way that I think that's something that actually rejuvenate you and it keeps you. Sports is something I think that is a stress reliever. It's absolutely a stress reliever. Then the thing is your relationship with your immediate family. Yes. So if you have a stress, one should know the only place that you can go and people will not be judgmental is your first family. Yes, those of course, friends, but your family, they love you unconditionally. अच्छा, फैमिली की अभी हमने बात की, तो इतने busy schedule और routine में how do you make sure to balance out personal and professional life? देखिए, मैं जितनी भी जॉब करता हूँ, मैं जितना भी कमाता हूँ, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपनी फैमिली की बेटरमेंट के लिए. बट अगर मेरे बिजी रहने से उनकी बेटरमेंट और उनकी हेल्थ में कमी आ रही है, तो देन इट्स नॉट वर्थ. सो आई डू गिव my family and enough of attention when it need. For example, at the weekend,
Every year at least twice I travel abroad with them. That's great. Yeah, चाहे 2 हफ्ते के लिए Quality time. Quality time. I spend time with them. 1.5 साल का COVID. I'm grateful to the COVID for allowing people to know their families. इस 1.5 साल में सही. मैं अपनी बेटियों को ज़्यादा बेहतर जाना हूँ, अपने बेटों को ज़्यादा बेहतर, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को ज़्यादा वो किया, उनको किस चीज़ में हैप्पीनेस होती है, उनको किस चीज़ में एंग्जाइटी होती है. I now know my kids better than before because 1 year, almost 6 months, day in, day out, we were together. Yeah. And whether we like it or not, we were to live together, we have to eat together. So I think COVID where has done lot of other damages have done blessings in disguise. Yes. आई हैं, बिल्कुल आई हैं. अच्छा, this question I'm really interested in asking from you. सबसे पहले मुझे बताएं कि पाकिस्तान में आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? I think Gilgit Baltistan, Hunza, Gilgit Hunza. Okay. Mia Lulu sir, Babu sir, and all that train. Okay. That is over there. Please. सही. And internationally, one destination. I like Europe. I like Europe more than America. I've been to America, Europe, and all that. I think. Anything specific in Europe? London. London. Yeah. Okay. I think Discover Pakistan and the hospitality division of Hashoo Group, हम दोनों के purposes, they're similar, to promote tourism and to portray the real Pakistan. तो उस बारे में आपका क्या take है for Discover Pakistan? What is your opinion on that? I think Discover Pakistan is a brand that should be not only exposed in Pakistan, should also be part and partial. मैंने अभी आज़म जमील साहब से जब मिलने गया उनको, जब वो हुए तो मैंने उनको कहा कि that we should go and represent ourselves in all the travel and tour forums of the world. Yeah. Arabian Travel Mart, London Travel Mart, Berlin Travel Mart. We should go and actually Discover Pakistan should play its role in taking Pakistan. So previously everybody used to go and छोटे-छोटे अपने stall लेंगे. मैंने उनको कहा कि let's have a Pakistan pavilion there. Okay. Everybody, चाहे वो airline है, hotels हैं, सारे उस pavilion में बैठे and show that how Pakistan is great when it comes to tourism. Sahi. I think you people are doing a brilliant job, and this is as we discussed in the beginning, as the first tourism channel which is actually showcasing Pakistan. Beauty and its talent and diversification. So I think we are a very natural partners when it comes to Hashoo Group and Discover Pakistan. Definitely. Now towards summing up our conversation, this is one question we always ask because I think it gives an insight. आपने अभी तक अपनी जर्नी से खुद क्या सीखा? मैंने अपनी जर्नी से जो what I have learned from my journey is that if you put the right efforts in place and you're backed up with good intentions, there is no one who can stop you for moving on with your objective. The one thing is unless you set yourself a goal or an objective, you can't work. So I think every young guy or a person who wants to excel in their field, they need to put the objectives, the small objectives, the long-term objectives. And they need to understand that their growth cannot be on the disgrowth of others. The growth has to be parallel to the others. So if you care and grow for others, if you give them growth and care for them, you automatically get care and growth from channel that you are looking for. On an ending note, I would want you to give some advising words or some tips to all the budding young professionals, स्पेसिफिकली जो हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में आना चाहते हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, स्टार्टअप्स वाले जो शुरू करना चाहते हों, उनके लिए कोई विजडम? I think for the younger generation coming in my field, I suggest that they should have patience. When they look at successful people, they should also study as to what number of hours and years have gone in their journey. बिल्कुल. We have stopped reading. Actually, किताबें पढ़नी चाहिए, and you should also know about success stories of the people, how they became successful. I think they need to study more about things which does not relate to their field, so that they can create an synergy between cohesion, ideology and things like that. But they should live life according to some ideology. They should just not live it without any reasons. There must be a reason for living life, whatever that reason could be, whatever that passion could be.
And if that's there, I think success is just Allah Miyan ki taraf se is a gift that can come your way. Thank you so much. You're very welcome. You took time out of your very busy schedule and you gave us all this insight where I got to learn so much, and definitely my personality grew, and I'm sure कि जो हमारे viewers हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा. We are very grateful for your time. Thank you very much, and it was great for you and your crew to be here, and it was a great talking about long about something which is very subjective. So yeah, very happy to be with you. Thank you. So this was our conversation with Mr. Haseeb Gardezi, a truly progressive conversation where we got to learn about all the positive things that are happening for Pakistan. For more such conversations, keep on watching our show, Meet the CEO, only on Discover Pakistan.